तो हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर 10। कृष्ण भगवान जो द्वारिका वापस जा रहे हैं उसके उस पर है पूरा। ठीक है, तो अभी तक का हमें पता है कि क्या हो रखा है, कि सारा कुछ युधिष्ठिर के जो भी डाउट्स थे वो सॉल्व हो गए। लास्ट चैप्टर में हमने वो देखा था, भीष्मदेव का पासिंग अवे ऑफ भीष्मा। और अभी इस चैप्टर में युधिष्ठिर महाराज के राज्य में कैसे कैसे ऑपुलेंसेस थे उसके बारे में है थोड़ा, और उसके बाद दूसरी चीजें भी आएगी। ठीक है, तो अभी लास्ट वर्स जो हमने किया था 10.1.10.4, उसमें क्या हमने देखा था कि युधिष्ठिर महाराज है उनके वहां पे जो जो बताया था, गायों के बारे में बताया गया था कि हाउ दे आर यूजफुल इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। और वो कितनी खुश रहती थी, और वो जैसे बताया था ना कि वो इतनी खुश रहती थी कि जहाँ पे भी वो चारा चरने जाती थी तो खुश खुश रहने की वजह से जो मिल्क होता था वो अपने बच्चों को तो पिलाती थी, साथ में जो भी उनको संभालता था वो भी अपनी फैमिली के लिए निकाल लेता था, उसके बाद भी बच जाता था तो वो सारा सारा मिल्क वो जो जहाँ पे वो चारा चरने जाती थी वहां पे सारा कुछ मॉइस्चराइज कर देती, यानी सोइल पूरी मॉइस्चराइज कर देती थी। ठीक है, वो हमने देखा था। और उसके अलावा हमने देखा था कि जो पृथ्वी थी और सारी 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 चीजें, यानी बारिश ऑन टाइम पर हो रही थी। ठीक है, और जो पृथ्वी थी सारा कुछ सही से प्रोड्यूस कर रही थी। वो हमने देखा था। अभी नेक्स्ट वाला वर्स है 10.1.10.5। इसको हम पढ़ेंगे आज। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके, तो टेक्स्ट 5। नगः समुद्रा गिरयः स वनस्पति विरुद्धः फलन्त औषधय सर्वः कामम अन्वृतु तस्य वै। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि ट्रांसलेशन, द रिवर्स, ओशंस, हिल्स, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, क्रीपर्स। Um, the rivers, ocean, hills, mountains, forest, creepers, and active drugs in every season paid their tax quotas to the king in profusion। तो यहाँ पे कितना बताया कि जो नदियां थी, समुद्र थे, हिल थे, माउंटेन्स थे, फॉरेस्ट थे, सारे लोग राजा को टैक्स दे रहे थे। यानी ये सोचना भी कितना वो है कि रिवर कैसे टैक्स देगी, माउंटेन कैसे टैक्स देंगे। तो अभी इसमें आगे बताया गया है, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो एनीवन एनीवन वुड लाइक टू रीड दिस? Yes, Prabhu, I can read. Hare Krishna. थैंक यू माता जी। Since Maharaj Yudhishthir was under the protection of Ajita, the infallible Lord, or as ever mentioned, the properties of the Lord, namely the rivers, ocean, hills, forests, etc., were all pleased, and they used to supply their respective quota of taxes to the king. The secret of the secret. Oh, 1 second. Hare Krishna. The secret to success is to take refuge under the protection of Supreme Lord. Without his sanction, nothing can be possible. To make economic development by our own endeavors on the strength of tools and machinery is not at all. The sanction of the Supreme Lord must be there. Otherwise, despite all instrument arrangements, everything will be unsuccessful. The ultimate cause of the success is the Daiva. The supreme kings like Maharaj Yudhishthira knew perfectly well that the king is the agent of Supreme Lord to look after the welfare of the mass of the people. Actually, the state belongs to Supreme Lord. The river, ocean, forest, hill, drug, etc. are not creation of man. They all are creation of Supreme Lord. And the living being is allowed to make
use of property of laws for the service of the laws. Today's slogan is that everything is for the people, and therefore the government is for the people and by the people. But to produce a new species of humanity at the present moment on the basis of God consciousness and perfection of human life, the ideology of godly communism, the world has to again follow in the footsteps of king like Maharaj Yudhishthira or Parikshit. There is enough of everything by the will of the Lord, and we can make proper use of the things to live comfortably without any enmity between the man or man and the animal, and man and the animal. Where is it? Prabhu? Yeah, or man and the nature. The control of the Lord is everywhere, and if the Lord is pleased, every part of nature will be pleased. The river will flow profusely to fertilize the land, and the ocean will supply sufficient quantities of mineral pearls and jewels, and forest will supply sufficient wood, drugs, and vegetables, and the seasonal change will effectively help produce fruits and flowers in profuse quantity. The artificial way of living depending on factories and tools can render so-called happiness only a limited number at the cost of millions. Since the energy of mass of people is engaged in factory production, their natural products are being hampered, and for this the mass is unhappy. Without being educated properly, the mass of the people are following in the footsteps of interests by exploiting natural reserves, and therefore there is an acute competition between the individual and nation and nation. There is no control by the trained agent of the Lord. We must look into the defects of modern civilization by comparison here, and should follow in the footsteps of Maharaj Yudhishthira to cleanse man and wipe our anarchism. थैंक यू माता जी। तो देखो यहाँ पे प्रभुपाद ने कितनी अच्छी तरीके से समझाया है कि इसका पूरा बताया है कि रिवर्स कैसे टैक्स पे करती थी, ओशन कैसे टैक्स पे करती थी। देखो, हम यानी रिवर्स रिवर्स में से सारा कुछ जो भी मिनरल्स वगैरह मिलता है, पहले तो रिवर्स से पानी मिलता है, पानी से सारा कुछ हमारा जो क्रॉप्स होता है वो फर्टिलाइजर यानी पानी उसको मिलता है तो वो ग्रो करता है। ओशन होता है तो ओशन में से काफी सारे मिनरल्स मिलते हैं। फिर हिल्स और माउंटेन में वो हमें पता है कि गोवर्धन माउंटेन, ठीक है, तो वहां पर इवन खुद भगवान ने बोला था कि इसकी पूजा करो, जो अभी भी हम कर रहे हैं। फॉरेस्ट से सारे कुछ हमारा घर चल जाए इसके लिए वुड मिलता है, फायर के लिए वुड मिल जाता है, फ्रूट्स फ्लावर्स सारा कुछ मिल जाता है, ठीक है। फिर क्रीपर्स और एक्टिव ड्रग्स यानी जंगल से ये भी मिल जाता है, सारे कुछ औषधियाँ जो बनती है वो सारी कुछ यहाँ से मिल जाती है। तो that is that is what given by all of this. That's why it says that paid their tax quota to the king in profusion। अभी ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि क्या होता था कि जैसे हमने लास्ट लास्ट वर्ष में देखा था कि जो राजा वैन था वो अधार्मिक था, और जब वो मर गया तो और वो उसने सारा कुछ बंद करवा दिया था। यानी उसने ऐसा बोल दिया कि सेजिस को कि भाई तुम लोग है ना, सारे हवन वगैरह जो सेक्रीफाइस करते हो वो सारा कुछ बंद कर दो और सिर्फ मेरी पूजा करो क्योंकि मैं भगवान हूँ, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि पृथ्वी रूठ गई और उसने सारा कुछ प्रोड्यूस करना स्टॉप कर दिया। और फिर उसके बाद सेजिस ने उसको मंत्रों से मार दिया क्योंकि उनको पता चल गया था कि ही इज नॉट द राइट कैंडिडेट टू सर्व, लाइक टू बी अ किंग। फिर उन्होंने जो अपने मंत्रों की शक्ति से पहले पहले एक निषाद पैदा किया, वो उसने सारा कुछ उस वेन राजा था उसकी बॉडी से वो निकाला और उसको सारा कुछ पाप पाप वाला दे दिया। और फिर उन्होंने दोनों आर्म पर चर्न किया, और एक आर्म से पृथु महाराज और दूसरी आर्म से अर्ची माता जी। यार ये अर्ची माता जी वो थी, वो गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून यानी लक्ष्मी माता जी थी, और पृथु महाराज थे वो सत्यवश अवतार थे। फिर क्या हुआ कि हमने वो भी सुना था कि जब उनको पता चला कि सारे सिविल जो प्रजा थी वो आई और बोली कि हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, कुछ कुछ अच्छा प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ठीक है, तो फिर उन्होंने वो पृथ्वी पर गुस्सा हो गया, पृथ्वी ने गाय का रूप लिया, फिर भी वो मारने चले गए थे। और फिर गाय ने बहुत सारा समझाया, फिर गाय ने ऐसा बोला कि गाय यानी पृथ्वी ने गाय का रूप लिया था, उसको ऐसा लगा था कि मैं गाय का रूप लूंगा तो ये
पृथु महाराज मुझे मारेंगे नहीं, लेकिन जब गाय का रूप ले लिया और फिर गाय ने, तभी भी वो मारने ही वाले थे, लेकिन उसने कन्विंस किया कि मैं क्यों नहीं कर रही थी सारा कुछ। बोले कि अभी ऐसा हो गया था उनके टाइम में, क्योंकि राजा वेन था उसके टाइम में सारा कुछ गड़बड़ हो गई थी। तो फिर उसने ऐसा बोला कि आप ऐसा करो कि किसी एक को काफ बनाओ, और आप आप मिल्किंग करो, और उससे क्या होगा कि सारा का सारा जो भी आपको जो सीड्स वगैरह चाहिए वो मैं आपको दे दूंगी। तो यानी एक चीज थी कि उसके बाद सबने, सब सारे डेमी गॉड्स वगैरह सब लोग ने, शिव भगवान सब जिनको जैसा चाहिए था, किसी एक को पॉट बनाया और किसी एक को काफ बनाया, और फिर सारा कुछ उनको मिल मिल किया, और सारा कुछ जो भी चीजें चाहिए थी वो दे दी, यानी फिर पृथ्वी ने वापस से सारा कुछ प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन तो इसमें कहने का मतलब क्या है कि पृथ्वी पृथ्वी वगैरह और ये जो सारे है रिवर्स ओशन वगैरह, वो तब देते हैं अगर सारा कुछ धार्मिक चल रहा हो पूरी दुनिया में, यानी धर्म वाली कुछ चीजें चल रही है, स्पिरिचुअल चीजें चल रही है, तब जाके ये देते हैं। अभी अभी हम देख रहे हैं कि रिवर्स वगैरह है, लेकिन क्या होती है, समर आता है तो सूख जाता है, और अभी मानसून के सीजन में फ्लड्स आ जाते हैं। तो यानी क्या है कि रिवर्स है, लेकिन वो उतना काम की नहीं रही, यानी काम की नहीं, वो तो है ही है, काम की ही है, लेकिन अधर्म जितना बढ़ रहा है उसके हिसाब से सारा कुछ खराब हो रखा है। कि फॉरेस्ट भी फॉरेस्ट नहीं रहे, है कुछ जगह, काफी सारी जगह पर है, लेकिन उसमें भी हम देखते हैं कि वो फायर हो जाता है, और फिर उसमें अभी सब ह्यूमन ह्यूमन बीइंग्स को सारा कुछ चीजें चाहिए, तो वो लकड़ियां काटते हैं और फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो रही, और हम हमारे शास्त्र में तो हम देखते ही है कि रिवर्स, ओशन, हिल, सबको सबको हम एज अ डेमिगॉड ट्रीट करते हैं, ठीक है। जैसे रिवर्स की बात करें तो गंगा मैया है, फिर यमुना है, गोदावरी है, काफी सारी रिवर्स है। फिर माउंटेन की बात करें तो हिमालय माउंटेन, अभी गोवर्धन पर्वत है, ठीक है। और ड्रग्स के बारे में बताए तो जो औषधियाँ है वो प्लांट से जो मिलती है, आयुर्वेद बोलते हैं जिसको हम, तो वो भी प्रोफ्यूजन यानी प्रचुर मात्रा में मिल रही थी, ठीक है। तो उससे क्या था कि कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, और जिसको कोई डिसीज भी होता था तो वो इजीली प्रॉब्लम सॉल्व, यानी क्योर इसी से ही हो जाता था। लेकिन अभी के हिसाब, अभी अभी हम हरे देखने जाए कृष्णा। तो, हरे कृष्ण माता जी, अभी ये हम देखने अभी हम देखने जाए तो जो आयुर्वेद के लिए जो प्लांट्स है वो भी कंटेमिनेटेड हो गए, क्योंकि सारा कुछ केमिकल केमिकल हो गया है, ठीक है। तो पहले जो जो जितना आयुर्वेद इफेक्टिव था उतना भी इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि खाने की चीजें, यानी सारे कुछ सीजनल मिल रही थी पहले, यानी फॉर एग्जांपल मैंगो तो समर में आराम से मिल जाता था, फिर विंटर और मानसून में तो वो देखने को भी नहीं मिलता। लेकिन अभी क्या होता है कि सारा कुछ कोल्ड स्टोरेज में चला जाता है, तो अराउंड द ईयर हमें मिलता रहता है, लेकिन वो क्या होता है कि वो सारा कुछ फ्रोजन होता है या प्रोसेस हो जाता है, वो केमिकली उसको पका देते हैं, वो सारा कुछ करते हैं। तो क्या होता है कि फूड भी अच्छा नहीं रहा है अभी अभी के हिसाब से। पहले क्या था, सब लोग सात्विक फूड खाते थे, तो सात्विक फूड कैसा होता है कि भगवान बता रहे भगवत गीता में कि जो फूड ज्यूसी हो, फैटी हो, होलसम हो और प्लीजिंग टू हार्ट, यानी जो जो फूड है ना, हम खाएंगे उससे हमें कोई डिसीज नहीं होगा, वो वाले फूड की बात हो रही है, ठीक है। तो और लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं तो अभी अभी के टाइम पे यहाँ पे हम जाते हैं जब सब्जी मंडी में सब्जी लेने के लिए, फ्रूट्स लेने के लिए, कुछ भी, तो देखते हैं कि देखने में अच्छा होता है, लेकिन सारे कुछ हाइब्रिड होता है, कुछ ना कुछ केमिकली प्रोसेस्ड होते हैं। तो इवन हम फ्रूट्स भी लाते हैं और वेजिटेबल भी लाते हैं, तो वो सारा कुछ सात्विक जैसा होता ही नहीं है बेसिकली, ठीक है, वो बताया है। अभी यहाँ पे बताया गया कि सिंस महाराज युधिष्ठिर वॉज अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ अजित, तो अजित द इनफेलिबल लॉर्ड, तो अजित अजित भगवान ने नाम कब यूज हुआ था, जब समुद्र मंथन हो रहा था उसके टाइम की बात करें, अब इसलिए बोला अजिता। as above mentioned, the properties of the lord, namely the river, ocean, hill, forest, etc., were all pleased, and they used to supply their respective quota of taxes to the king। तो ये क्या बताने जा रहा है कि
ये समुद्र मंथन के टाइम पर भी क्या हुआ था कि डेमिगॉड्स और देवता, सॉरी डेमिगॉड्स और असुर, तो डेमिगॉड्स ने क्या किया, भगवान का सहारा लिया, तो भगवान ने जितने भी प्रॉब्लम्स आए वो सारे हटा दिए। और तो यानी अगर हम भगवान के साइड रहते हैं तो जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो हमें, इवन बड़ी से भी बड़ी प्रॉब्लम होगी तो हमें ऐसा नहीं लगे, हमारा डील करने का नजरिया चेंज हो जाएगा। ठीक है। और चैतन्य महाप्रभु भी बोलते हैं कि कोई भी अगर मेरा नाम लेगा ना, या कोई हरे कृष्णा महामंत्र भी करेगा, तो क्या होगा इससे, खुद भगवान प्लीज हो जाएंगे, यानी वो ही भगवान ही है लेकिन वो ऐसा बोलेंगे कि भगवान प्लीज हो जाएंगे, और उससे क्या होगा, सब लोग सेटिस्फाइड हो जाएंगे। और जब सब सेटिस्फाइड हो जाएंगे तो जो भी हमें चाहिए, जो जैसे यहाँ पे पानी पानी चाहिए या जो भी मिनरल्स वगैरह फूड वगैरह चाहिए, वो इजीली मिल जाए, क्योंकि क्या होता है कि इसमें भगवान खुद सेटिस्फाइड हो जाते हैं। जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान गेट सेटिस्फाइड। ओके। फिर उसके बाद क्या बताया गया है कि दी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, यहाँ पे बताया गया है कि जो सारा कुछ डेवलपमेंट होता है, टू मेक एन इकोनॉमिकल डेवलपमेंट बाय आवर ओन एंडेवियर्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द टूल्स and the machinery is not all. The sanction of the Supreme Lord must be there. Otherwise, despite all instrumental arrangement, everything will be unsuccessful. And the ultimate cause of success is the Deva, the Supreme, यानी भगवान की बात हो रही है। ठीक है। तो हम कितना भी अंडरवेयर कर ले, जैसे भगवत गीता में बताया गया है ना कि 5 causes ऑफ एक्शंस, तो उसमें क्या होता है कि पांच पांच कारण होते हैं। तो सबसे पहला, कोई भी एक एक्शन को कंप्लीट करने के लिए हमें पांच चीजें, पांच पांच फेजेस लगते हैं। तो सबसे पहला क्या होता है कि प्लेस ऑफ एक्शन। ठीक है। तो हम ऐसे समझ ले, सचिन तेंदुलकर की बात करो तो सचिन तेंदुलकर की बॉडी है। ठीक है। दूसरी चीज है द डूअर। डूअर यानी सचिन तेंदुलकर अकेली बॉडी होगा तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, उसके शरीर में एक सोल है। ठीक है। उसके बाद है तीसरा इंस्ट्रूमेंट, तो यानी सेंसेस सारी। तो सचिन तेंदुलकर के पास उसकी आंख नाक वो देखेगा, हैंड लेग सारा कुछ यूज करेगा। और उसके बाद है लास्ट वाला, उसके बाद क्या होगा, फोर्थ नंबर का होगा उसका एंडेवर। अगर उसको अगर उसको क्रिकेट वो खेल रहा है और उसको सिक्स लगानी है या चौका लगाना है, तो वो उसके लिए उसको प्रयत्न करना पड़ेगा। लेकिन वो चौका छक्का लगेगा या नहीं लगेगा, उसका सारा का सारा डिपेंड होता है भगवान पे। तो यहाँ पे लिखा है, इसलिए बोला गया है द सैंक्शन ऑफ द लॉर्ड सुप्रीम, सुप्रीम लॉर्ड मस्ट बी देयर, अदरवाइज डिस्पाइट ऑल इंस्ट्रूमेंटल अरेंजमेंट एवरीथिंग विल बी अनसक्सेसफुल। तो अगर भगवान सैंक्शन नहीं करेंगे तो आप कितना भी प्रयत्न कर लो, कितना भी कर लो, आपसे कुछ नहीं होगा। क्योंकि हमने देखा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पूरे दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन वो फिर भी गरीब होते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि थोड़ी सी मेहनत करेंगे और उनके पास पैसा आ जाएगा। तो वो क्या होता है कि वो डेफिनेटली पास्ट कर्मा भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे भगवान की सैंक्शन भी लगती है। जब भी सैंक्शन होता है तब जाके उनको वो सारा कुछ फ्रूट मिलना चाहिए, वो सारा कुछ मिलता है। ठीक है। फिर यहाँ आगे बताया गया है द रिवर ओशन फॉरेस्ट हिल ड्रग्स एक्सेट्रा आर नॉट अ क्रिएशन ऑफ मैन। कुछ टाइम पर ऐसा बोलते हैं ना यहाँ पे कि हाँ भाई मैंने बनाया है, मैंने भी है। जैसे कोई गाड़ी गाड़ी इन्वेंट की तो बोले कि मैंने की इन्वेंट की है। लेकिन हाँ, इन्वेंट यानी तूने सिर्फ इन्वेंट की है, क्रिएट नहीं की है। ठीक है। तो तेरे पास सारा कुछ जो भी मटेरियल था, वो सारा का सारा मटेरियल तूने पृथ्वी से लिया, और उसके बाद तूने इन्वेंट किया। लेकिन वो क्या बोलते हैं, मैंने की, मैंने बनाई। अरे ऐसा नहीं होता है। जो भगवान भगवत गीता में बताते ना, वो वाला वर्ष है, अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव सम्मत्विता। तो आई एम द सोर्स ऑफ ऑल स्पिरिचुअल एंड मटेरियल वर्ल्ड। ठीक है। और सारा कुछ मुझ में से आ रहा है। जो भी इसको समझेगा और डिवोशनल सर्विस, मेरी डिवोशनल सर्विस करेगा एंड वर्शिप करेगा, वो ही ही अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ठीक है।
और दूसरा चीज की, जब वो बोलते हैं कि ये सब मैंने बनाया, यानी कार मैंने बनाई है, ठीक है, लेकिन उसके लिए भी इंटेलिजेंस चाहिए। वो इंटेलिजेंस कहाँ से आती है? तो वो भी भगवान देते हैं। और कार बनाने के लिए तो काफी लोगों ने ट्राई किया, लेकिन कुछ लोग ही सक्सेसफुल हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे भगवान की सैंक्शन लगती है, तब जाके उनको इतनी इंटेलिजेंट मिलती है कि कार का ये पार्ट ऐसे बनाएंगे तो ये बेनिफिट्स होगा। तो ये जो इंटेलिजेंस है उसके बारे में एक भगवत गीता में एक वर्स है, किसी को पता है कि कौन सा वाला है? इंटेलिजेंस के बारे में क्या बता रहे हैं भगवान? सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वे अहम एव वेद्यो वेदांतकृत वेदाविद एव चाहम। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि वो चैप्टर 15 का वर्स है, 15.15, ठीक है। तो वहां पे भगवान बता रहे हैं कि मैं सबके हृदय में बैठा हुआ है। जो भी रिमेम्बरेंस, नॉलेज और फॉरगेटफुलनेस सारी मुझसे आती है, ठीक है। तो यहाँ पे भगवान खुद बोल रहे हैं कि ये सारा कुछ मैं ही देता हूँ। अगर भगवान नॉलेज नहीं देंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, यानी जो जो हम सब करते हैं कि मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, वो सारा कुछ नहीं होगा, ठीक है। और देखो, जब ह्यूमन कुछ चीज बनाता है तो उसमें ऑलवेज प्रॉब्लम होती है। जैसे कार तो बना ली, लेकिन अभी देख रहे हैं कि रोड पे इतने सारे एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं, काफी लोग मर जाते हैं, और ऊपर से पॉल्यूशन भी बढ़ गया है। देखो, पहले फ्रेश एयर मिलती थी, अब वो भी नहीं मिल रही है, ठीक है। तो यानी कुछ भी बनाएगा तो वो प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। फिर आगे बताया गया है कि सारा कुछ पृथ्वी पर इनफ है। यहाँ पे बताया गया है there is enough uh, there is enough of everything of the will of the Lord, and we can make proper use of things to live comfortably without hate between man and man and animal and man and nature, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं भगवान कि अगर अ, यहाँ पे जो जो भी हमें मिल रहा है ना, वो इनफ है, सारी की सारी चीजें इनफ है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कम पड़ जाएगी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, वो मैं भागवतम पढ़ रहा था ना, उसमें एक वर्स में है, कैंटो 4 में, कि कुछ कंट्रियां ऐसी है ना कि कुछ कंट्रियां, नाम तो नहीं बताया था, लेकिन उसमें ऐसा लिखा गया है कि वहां पे मिल्क बहुत प्रोड्यूस होता है, लेकिन वो क्या करेंगे कि जो नेबर कंट्री है जहाँ पे कम प्रोड्यूस हो रहा है, वहां पे नहीं देंगे। वो है ना, वो मिल्क है ना, दरिया में जाके डाल देंगे या नदियों में बहा देंगे, ठीक है। कुछ ऐसी कंट्रीज है वहां पे फूड, यानी जो क्रॉप्स है वो सही से, गेहूं वगैरह सारा कुछ अच्छा होता है, तो वो क्या करेंगे, दूसरी जो गरीब कंट्री है जिनको जो भूख से मर रहे हैं ना, उनको वो नहीं देंगे। वो वो क्या करेंगे, वो भी जाके दरिया में डाल देंगे। तो क्या है कि इसकी वजह से क्या होता है कि इसकी वजह से क्या होता है कि सारा कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। और हम जो भगवान ने जो हमें ये सारी कुछ चीजें हमें अवेलेबल की है, उसका हम यूज सही से नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि उनको क्या लगता है कि अगर मैं मिल्क किसी को फ्री में दे दूंगा, बगल वाली कंट्री को, नेबर कंट्री को, तो क्या होगा कि उनको ऐसा लगेगा कि मेरा मिल्क का प्राइस कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए। फिर आगे बताया गया है कि फैक्ट्रियोज की बात हो रही है, ठीक है। आर्टिफिशियल वे ऑफ लिविंग डिपेंडिंग ऑन फैक्ट्रीज एंड टूल्स कैन रेंडर सो कॉल्ड हैप्पीनेस ओनली टू अ लिमिटेड नंबर एट अ कॉस्ट ऑफ मिलियंस। तो जो फैक्ट्रिया होता है ना, तो भगवत गीता में तो उसको क्या बोला गया है कि उसको उग्र कर्म में काउंट किया जाता है, क्योंकि क्या होता है कि उससे क्या होता है कि जो भी प्रोड्यूस होता है ना, तो किसी को पेन होता है उसके, ठीक है, किसी के लिए खुशी है, लेकिन सब मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए पेन है, और जो भी खुशी है वो टेम्पररी है। जैसे मैं कोई आर्टिकल मैंने पढ़ा था कि इंडिया में, आई थिंक साउथ इंडिया में, ये जो कोका कोला, जो बेवरेज, जो सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी है, तो उन्होंने कहीं पे प्लांट खोला। तो पहले उन्होंने क्या किया कि वो वहां पे गए, विलेज विलेज टाइप का एरिया था, वहां पे गए, सबको
1 लाख की जमीन थी, सोचो 1.5 लाख में दे दिया, तो सब लोगों ने बेच दी। उनको लगा कि चलो प्लांट बनेगा तो सबके पास नौकरी आएगी। और फिर कुछ लोगों ने जमीन नहीं बेची। अभी प्रॉब्लम क्या हो गई, जैसे ही वहां पे प्लांट बना ना, तो थोड़े टाइम के बाद वो पानी निकालते ही गए, निकालते ही गए, निकालते ही गए। अभी जो आजू बाजू में जो भी जमीन है ना, खेती लायक जमीन, वहां पे पानी ही नहीं है। अभी देखो, कुछ लोग यानी कोका कोला की कंपनी में देखने जाए तो कुछ लोग ही ऐसे हो गए जो खुश हो गए। और मोस्टली अगर आप देखो जाओ कि आजू बाजू में जितने भी, ऐसा भी नहीं है कि पानी जब जमीन से निकलता है तो थोड़ी जगह में ही वो सारा कुछ प्रॉब्लम करता है, नहीं, काफी सारी जगह कवर कर लेता है। अगर वो 10 किलोमीटर का एरिया भी कवर करता है, 10-20 किलोमीटर का एरिया, तो सोच लो आजू बाजू में जितने भी गांव होंगे, वहां पे जितने भी ह्यूमन लाइव्स होगी यार, एनिमल्स होगे, सारे लोग अफेक्टेड हो जाएंगे, यानी सबको प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है। तो वो वो है ना, हमें नहीं करना है एक्चुअल में। इसलिए बोला गया है कि पहले के टाइम पे जो राज्य चलते थे वो कैसा चलते थे कि जो युधिष्ठिर महाराज थे तो सारा कुछ सबको सही मिल रहा था। जैसे मैं जब भगवत गीता में पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अ, अर्जुन ने बोला था ना कि अर्जुन ने ऐसा बोला था कि ये मुझे युद्ध नहीं करना है। और उसने रीजन सारे बताए थे उसमें। वो रीजन भी बताया था कि सब लोग जो वुमेन्स होगी वो पॉल्यूटेड हो जाएगी, किसी को कुछ कोई देखने वाला नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देखो, ये वाले चैप्टर में भगवान बता रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज के टाइम में सारी ओपुलेंसेस थी और सब लोग खुश थे। ठीक है। तो यानी हम भगवान को खुश करते हैं बेसिकली। तो कहने का मतलब यही है, अगर हम भगवान को खुश करते हैं तो सारा कुछ भगवान खुश। तो यानी सारी जो सारी देवी देवता है, सारे डेमिगॉड्स, सब वो लोग खुश हो जाएंगे। और अगर वो लोग खुश हो जाते हैं ना, तो जो भी जो जो भी पृथ्वी पर सारी भी चीजें हैं वो प्रचुर मात्रा में, यानी काफी सारी मात्रा में हमें मिलता रहेगा और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है। तो ये वर्ष यही बताना चाहता है। ठीक है। तो यानी हमें बेसिकली जो जैसे युधिष्ठिर महाराज जिए थे ना, और जो अपने लिए, अपने प्रजा के लिए काम करते थे, वो तरीके से बता रहे प्रभुपाद की हमें हमें आज के टाइम पर वैसे ही जीना चाहिए। लेकिन सारा कुछ करप्टेड हो गया है, वो सारे कुछ बंद हो गया है। और पहले तो क्या था कि एक ही राजा था पूरे वर्ल्ड का। पूरी दुनिया में कहीं पे भी जाओ तो एक ही राजा था। अगर वो राजा ने कोई नियम बना लिया तो कोई मना उसको नहीं कर सकता। और आप सोचो कि युधिष्ठिर महाराज वो तो धर्मनिष्ठ थे, ठीक है, धर्म राजा थे। तो उनके टाइम में उन्होंने जो भी रूल बनाए होंगे, वो धर्म के हिसाब से और अंडर द गाइडेंस ऑफ कृष्णा इटसेल्फ। तो उनके हिसाब से बन सारा कुछ किया। तो खुद भगवान खुश है। और जो रूल उन्होंने बनाए हैं, तो और वो वही एक राजा थे, दूसरे ऐसा भी नहीं था, काफी सारे राज्य थे, लेकिन वो सारे ये राजा के अंडर में आते थे क्योंकि वो चक्रवर्ती राजा थे। ठीक है। तो दुनिया के कोई भी कोने में चले जाओ, उसी हिसाब से सारा कुछ चलता था। और उसकी वजह से सारे लोग खुश थे, और सारा कुछ स्पिरिचुअली चलता था, तो सब लोग खुश रहते थे। तो किसी को कोई चीज की कमी नहीं थी। ठीक है, अभी नेक्स्ट वर्स। नादयो व्याधयः क्लेशा दैवा भूतात्मा हेतवः अजातशत्रौ अभावना जंतुम रजनी करहिचित। Because of the king having no enemy, the living beings were not at any time disturbed by mental agonies, disease, or excessive heat or cold। यानी उस टाइम पर राजा का कोई कोई दुश्मन ही नहीं था, क्योंकि एक ही राजा था। और अश्वमेध यज्ञ की किया था, और उन्होंने सारी जगह पे घोड़ा भी भेजा था। वो हमें पता है ना कि जब घोड़ा भेजते हैं तो किसी, यानी जो चैलेंज होती है, जिसको जिसको युधिष्ठिर महाराज एज ए सम्राट पसंद नहीं है, उसको वो घोड़े को पकड़ना होता है और फिर उसके वो चैलेंज एक्सेप्ट करनी होता है। उन दोनों के बीच फाइट होती है, और फिर आगे जो भी जीतता है फिर उसके उसके हिसाब से आगे चलता है। ठीक है। लेकिन कोई नहीं था, किसी ने नहीं रोका था। ठीक है। सिर्फ वो इसने रोका था, जरा जरा जरासन, आई थिंक, मैं नाम भूल गया, आई थिंक।
और फिर क्या होता है कि यहाँ पे क्या बताया, जो व्याधिज यानी आदि वादी और क्लेशा यानी आदि व्याधि और उपाधि, इसको वैसे बोलेंगे, ठीक है। तो उसमें तीन है। एंजाइटी, एंजाइटी यानी कौन सी मिजरी मिजरी में काउंट होती है, जो आध्यात्मिक होती है, जो यानी अपने दिमाग की उपज उपज होती है, उसकी बात है। व्याधि यानी डिजीज, तो यानी डिजीज यानी अधिभौतिक बोलेंगे उसको। और तीसरी है क्लेशा यानी ट्रबल ड्यू टू एक्सेसिव हीट और कोल्ड, सो बाय नेचर, तो उसको क्या बोलेंगे, आधि दैविक, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखने जाए कि डिसीज, देखो ये सारा कुछ जो भी होता है ना, वो सारा कुछ भगवान की व्हील से होता है। तो अभी अभी के हिसाब अभी अभी का हम लेटेस्ट एग्जांपल अगर एक समझने जाए, तो जो व्याधि यानी जो डिसीज वगैरह आते हैं, तो ठीक है उसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट तो है ही है। लेकिन आप सोचो कि जब कोविड आया था, तो किसी के पास कोई इसका इलाज नहीं था, ठीक है। काफी लोग मर गए, काफी लोग मर गए, हर नया वेरिएंट आता गया, नया वेरिएंट आता गया, मरते गए मरते गए मरते गए। फिर क्या हुआ कि उन्होंने वैक्सीनेशन ढूंढी, साइंटिस्ट ने। और वो वैक्सीनेशन, हमें पता है ना कि जब वैक्सीनेशन लगती है तो उसकी भी एक वैलिडिटी होती है, यानी बॉडी में जाके उसका भी एक असर होता है कि भाई 6 महीने में या 1 साल में उसका असर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अभी भी हम देखते हैं, न्यूज में पढ़ते हैं कि कोविड का अभी भी नए नए वेरिएंट्स आते रहते हैं, ठीक है। तो पहले काफी सारे लोग मर गए, अब क्यों नहीं मर रहे? जिन जिन लोगों ने वैक्सीनेशन ली थी, अ, उन्होंने तो, कुछ लोगों तो ऐसे भी है, जैसे कुछ लोगों ने 2 साल पहले वैक्सीनेशन ली थी, और अभी भी नए वेरिएंट्स आते हैं, तो क्यों नहीं मरे? तो क्यों, क्या क्या होता है कि ये जो डिजीज वगैरह होते हैं ना, वो क्या होता है कि वो सारा कुछ भगवान की विल से होता है, कुछ टाइम पर आते हैं फिर बंद हो जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा यानी ये प्रकृति 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 बोलेंगे उसको, भगवान की विल से, यानी प्रकृति प्रकृति से होता है सारा कुछ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बताया गया है कि यहाँ पे जंतुम और यानी जो भी लिविंग एंटिटीज थी, लिविंग बीइंग्स थी, यानी जो उनको भी तीन ताप नहीं तपा रहे थे। तीन ताप यानी जो आधिदेविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक, उनको भी ये प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, यानी सारा कुछ एकदम सही से चल रहा था, ठीक है। तो ये देखो कि कितना अच्छा बताया गया है कि अ, अगर राजा धर्म से चलता है तो कोई भी टाइम के प्रॉब्लम्स नहीं होते, इवन थ्री मिजरीज भी नहीं होती है, ठीक है। एनीवन वुड लाइक टू रीड दिस पर्पट? Okay, I can read. That's fine. Uh, to be non-violent to human beings and to be a killer or enemy of the poor animals is Satan philosophy. In this age, there is enmity towards poor animals, and therefore the poor creatures are always anxious. The reaction of the poor animal is being forced on human society, and therefore there is always a strain of cold or hot war between men individually, collectively, and nationally. At the time of Maharaj Yudhishthir, there were no different nations, although there were different subordinate states. The whole world was united, and the supreme head, being a trained king like Yudhishthir, kept all the inhabitants free from anxiety, disease, and excessive heat and cold. They were not only economically well to do, but also physically fit and undisturbed by supernatural power, by enmity from the other living beings, and the disturbance of the bodily and mental agonies. There is a proverb in Bengali that a bad king spoil the kingdom and a bad housewife spoil the family. This truth is applicable here also because the king was pious and obedient to the Lord and sages, because he was no one's enemy, and because he was a recognized agent of the Lord and therefore protected by him. All the citizens under the king's protection were, so to speak, directly protected by the Lord and his authorized agent. Unless one is pious and recognized by Lord, he cannot make others happy who are under his care. There is full cooperation between man and God and man and nature. And this consciousness between cooperation between man and God and man and nature
as ex, exemplified by King Yudhishthir, can bring about happiness, peace, and prosperity in the world. The attitude of exploiting one another, the custom of the day, will only bring miseries. ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि टू बी ए नॉन वायलेंट टू ह्यूमन बीइंग एंड टू बी अ किलर और एनिमी ऑफ द पुअर एनिमल इज अ सैतान फिलोसॉफी। यानी अ, पता है कि किसी अगर ह्यूमन को मार दिया तो जेल हो जाएगी, तो उनको कुछ नहीं करना है। लेकिन पता है कि एनिमल को मारने पर कुछ नहीं होगा, तो उनको मार के खा जाना है। ठीक है। तो ये जो फिलोसॉफी है ना, जो अभी चल रही है, तो उसको शैतान फिलोसॉफी बोला गया है। तो प्रभुपाद कुछ लोग बोलते हैं ना कि मानव सेवा ही माधव सेवा। तो वो क्या करते हैं कि ह्यूमन को कुछ नहीं करना है, जो एनिमल मिलता है उनको अपने टेस्ट वर्ड के लिए उनको मारो और खाओ। ठीक है। तो और फिर कुछ बात ऐसा भी होता है कि मानव सेवा और माधव सेवा में करने के चक्कर में क्या करते हैं कुछ लोग, जो नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं, वो नॉन वेजिटेरियन फूड पुअर लोगों को खिलाते हैं, जो गरीब लोग होते हैं उनको खिलाते हैं। अभी वो करेंगे तो कैसे मानव सेवा माधव सेवा हुई? अरे, तुम लोग किसी को मार के किसी का पेट भर रहे हो। दैट इज नॉट मानव सेवा माधव सेवा एक्चुअल में। मा, मानव सेवा से माधव सेवा हो ही नहीं। हो सकती है अगर आप डिवोटीज की सर्विस करते हो और किसी को आप स्पिरिचुअली एनलाइट करते हो, तो हाँ, उस केस में बोल सकते हैं कि मानव सेवा माधव सेवा। अदरवाइज उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है। फिर यहाँ पे बताया गया है इन दिस एज देयर इज एनमिटी टुवर्ड्स पुअर एनिमल एंड देयरफॉर द पुअर क्रिएचर वाज ऑलवेज एंसियस। ठीक है। और क्या होता था, द रिएक्शन ऑफ द पुअर एनिमल इज बीइंग फोर्स ऑन ह्यूमन सोसाइटी एंड देयरफॉर देयर इज ऑलवेज अ स्ट्रेन ऑफ कोल्ड और हॉट वॉर बिटवीन मेन, इंडिविजुअली, कलेक्टिवली और नेशनली। तो क्या होता था कि देखो, प्राणियों को मारने से, एनिमल्स को मारोगे तो कर्मा तो लगेगा ही लगेगा, और कर्मा हमें भुगतना भी पड़ेगा। ठीक है। तो जैसे वो उनको मारते हैं, तो अभी हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड में कितने सारे वॉर चल रहे हैं अभी। अभी रशिया यूक्रेन चल रहा है, फिर इजराइल और पैलेस्टीन, वो काफी सारी कंट्रीज में वॉर चल रहे हैं। कुछ कहाँ पे कुछ न्यूज आती है, कुछ नहीं भी आती है। ठीक है। लेकिन ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सब प्राणियों को मार रहे हैं और उनको अपना खाना बना के खा रहे हैं। ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम उसकी वजह से आ रही है, क्योंकि उनको कर्मा लग रहा है। ठीक है। फिर आगे बताया गया है कि अनलेस, थोड़ा आगे यहाँ पे आगे एक बताया गया है कि अनलेस, कहाँ गया, yeah, unless one is pious and recognized by the Lord, and he cannot make others happy who are under his care। अगर अगर देखो, कोई पायस नहीं है और रिकॉग्नाइज बाय द लॉर्ड, यानी युधिष्ठिर महाराज जैसे की बात हो रही कि जो, यानी जो भगवान के डिवोटीज नहीं, उनकी बात हो रही, वो दूसरे लोगों को हैप्पी नहीं कर सकते अपने अंडर, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि लाइफ कैसे जीनी है, यानी लाइफ कैसे स्पिरिचुअली जीनी है। वो उनको पता ही नहीं है। अगर कोई अ, देखो, हमने यहाँ पे देखा है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने के बाद we have understood so many things about God that was we never aware of। तो और जैसे हमें पता चला कि ये जो बॉडी है इज जस्ट लाइक अ ड्रेस, और ड्रेस ऑन द ड्रेस। ठीक है। इसको आज नहीं तो कल यानी इसको ये यहीं पर रह जाएगा, और इसमें से सोल निकल जाएंगे। ठीक है। और सोल है वो नया, इसको ऐसी कोई बॉडी मिल जाएगी। ठीक है। तो ये सारा कुछ टेम्पररी है। और अभी जिनको पता नहीं है ना, ये सारा कुछ पायस पायस नहीं होते हैं ना, उनको क्या होता है कि उनको जो स्क्रिप्चर का नॉलेज नहीं होता है, वो लोग क्या करते हैं, किसी की हेल्प करने जाते हैं तो वो बॉडीली लेवल पर करते हैं। और हमें पता है कि ये सारा कुछ मटेरियल वर्ल्ड है, वहां पे इटर्नल हैप्पीनेस जैसी कोई चीज है ही नहीं।
ये सारी कुछ हैप्पीनेस है वो टोटली टेम्पररी है। और वो यानी वही बात है कि इसके लिए क्या होना चाहिए कि पायस होना चाहिए और रिकॉग्नाइज बाय द लॉर्ड होना चाहिए, ठीक है। फिर और इसको ये काम कैसे करता है अगर सोचना जाए तो देखो, एक मुझे फॉर एग्जांपल मुझे अगर हेडेक हो जाता है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, चलो मैंने डिस्प्रिन खा ली, तो अभी डिस्प्रिन काम कैसे करती है वो मुझे नहीं पता है, लेकिन जैसे ही मैंने खा ली तो मेरा हेडेक चला जाएगा। अभी मुझे इतना तो पता चल गया है कि मुझे मेरा हेडेक निकालने के लिए डिस्प्रिन खानी है, ठीक है। और अगर किसी को प्रॉब्लम, किसी कोई और है घर में और जिसको हेडेक हो जाता है, तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई जाके डिस्प्रिन खा ले, और जैसे ही वो डिस्प्रिन खाएगा उसका भी हेडेक चला जाएगा। तो यानी क्या होता है कि अगर हम शास्त्र वगैरह पढ़ते हैं तो हमें सारी यानी रियलाइजेशन होती है और हमें नॉलेज मिलता है। तो अगर वो नॉलेज हम आगे बढ़ाएं, आगे किसी को पास ऑन करते हैं, तो वो भी अ, उसका बेनिफिट ले सकता है। तो इसलिए बोला गया है कि पायस होना और रिकॉग्नाइज बाय द लॉर्ड, ये होना जरूरी है इफ वी वांट टू मेक समवन एल्स हैप्पी, ठीक है। उसके बाद आगे बताया गया कि देयर इज अ फुल कॉर्पोरेशन बिटवीन मैन एंड गॉड एंड मैन एंड नेचर, एंड दिस कॉन्शियसनेस कॉर्पोरेशन बिटवीन मैन एंड गॉड एंड मैन एंड नेचर आर एग्जाम्पली बाय किंग युधिष्ठिर। अभी वो ट्रायंगल पता है ना कि भगवान, प्रकृति और लिविंग एंटिटी, ठीक है। अगर हम, हमें क्या सोचना है कि आई एम द सर्वेंट ऑफ गॉड कृष्णा, ठीक है, एंड प्रकृति इज द एनर्जी ऑफ कृष्णा, ठीक है। और हमें ये नहीं सोचना है कि आई एम द एंजॉयर ऑफ द एंजॉयर ऑफ द प्रकृति, यानी जो भी मटेरियल्स जो भी यहाँ पे हम मिलता है उसका एंजॉयर मैं हूँ, नहीं। हमें जो भी मिलता है वो सारा कुछ हमें भगवान की सेवा में डालना है, फिर हम यूज कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि यानी भगवान को दिया यानी भगवान को ऑफर किया, ग्रेटिट्यूड बताया, ग्रेटिट्यूड से हमने भगवान को दिया, एंड फिर हम यूज कर सकते हैं एज अ प्रसाद, ठीक है। अगर हमने ये नहीं किया तो प्रॉब्लम क्या होगा कि जो प्रकृति है हमें तीन मोड से बांध लेगी, यानी थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर में हम बन जाएंगे, और फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगी। लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि this conscious cooperation between man and God and man and nature was exemplified by King Yudhishthir can bring about happiness, peace and prosperity in the world। तो ये सारा कुछ किंग युधिष्ठिर महाराज के टाइम में चल रहा था और सब लोग इसके लिए, इससे हैप्पी थे और वहां पे शांति थी, ठीक है। लेकिन द एटीट्यूड ऑफ द एक्सप्लॉइटिंग वन अनदर, द कस्टम ऑफ द डे विल ओनली ब्रिंग मिजरीज। अगर हम उसके ऑपोजिट चल रहे हैं और एक दूसरे को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ एनवीएस है, तो सिर्फ मिजरी ही मिजरी आएंगी। ये प्रभुपाद यहाँ पे पूरा बताना चाह रहा है, ठीक है। आई थिंक दैट इट इज, I'll stop here and see if anyone have any question। Just a reflection, Prabhu, that when you said, that example that you gave, ke Disprin, we know that Disprin is the solution for headache. Uh, Mm-hmm. but having the knowledge of a right Disprin, like Disprin maybe matcha, Yes। there's so many, yeah. It is so vital, like which medicine to take. हाँ, मेडिसिन में भी काफी सारे मेडिसिन है, लेकिन जो बोनाफाइड एक्चुअल में यहाँ पे तो हमें ऐसा ही समझे है कि बोनाफाइड होना Yeah, चाहिए। yes, किसी किसने किस सबकी कॉन्शियसनेस क्या जैसे हमें प्रभुपाद की कॉन्शियस देखने जाए तो ही वॉज ऑन द डेथ बेड एंड ही वॉज स्टिल प्रीचिंग। yeah, तो उनकी कॉन्शियस देखने जाए तो उनको कुछ नहीं लेना था, उनको सिर्फ सबको देना था। that's right. उन्होंने वो एज एज एट एज ऑफ 70 14 बार ग्लोबल पूरा घूमना, और उस टाइम पे इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, स्टिल, Absolutely, yeah. है ना। और अभी के जो बाबा हम देखते हैं तो वो सब घर भर रहे हैं और वो हमें पता है कि क्या चल रहा है, ठीक है, न्यूज में हम पढ़ते ही रहते हैं। Yeah, that's true. And he never got jet lag as well. Like that is हाँ, absolutely divine. Like
कृष्णा की हाँ, मर्जी के बिना इतना पावरफुल इंसान हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता, सही बात है। वो आई थिंक मैंने सुना था कि कोई एक डिसाइपल था, वो मैक्सिमम जो रहा था उनके साथ, वो 2 साल रह पाया था, यस क्योंकि यस, अभी जेटलैग का मुझे इश्यू प्रभु हो ने रहा था। बताया था। यस यस, दे कुडंट हम्म, सर्वाइव द ट्रैवल दैट ही वाज एट द स्पीड that he was traveling. हाँ। They couldn't हम्म, survive. हम्म, Yeah, thank you, Prabhuji, for a wonderful class. थैंक यू माता जी। ओके, ऑलराइट देन, हरे कृष्णा, थैंक यू हरे एवरीवन। कृष्णा प्रभु जी, हरे Hare कृष्णा। Krishna. हरे कृष्णा। Hare Krishna. हरे कृष्णा।